सिलेबस में उनको विल कवर अप। तो उसमें उसके बाद फिर हम एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ों उस पर आते हैं। So as far as polymers are concerned, one should know that polymers are actually made like polymers are of two types primarily: addition polymers and condensation polymers. Addition and condensation. So we don't have condensation polymers in our syllabus in AS. In fact, A2 में पूरा चैप्टर है polymers का, उसमें addition condensation सब आते हैं. But AS में we just have this addition polymers. So for addition polymers, one should know that these are made by alkenes. The monomers which form the polymers are the alkenes, and they have carbon-carbon double bond, or they are unsaturated monomers. इनसे बनते हैं. Generally speaking, polymers की जो properties हैं, they include like polymers are macromolecules or large molecules. The polymers that we know or included in our syllabus are solid at room temperature. They do not have fixed or sharp melting points. No fixed or sharp melting points. उसकी reason ये है कि polymers are mixtures, not compounds. Polymers are mixtures of chains of different lengths. Polymers are not compound, like different size ki chains come together to make one polymer, and because mixtures do not have sharp melting point, that's why polymers do not have sharp melting points. And then generally speaking, polymers are insoluble in water and they are non-electrolyte. तो ये कुछ general physical properties हैं जो polymers की आपको याद रखनी चाहिए. फिर polymers are most of the polymers are like harmful for the environment. Everybody knows it. They're like type of plastic as such. अब इसके बाद जो addition polymers की types आपके syllabus में, उसमें as I just said के primarily तो वही हैं सारी polythene, PVC, Teflon वगैरह. But you need to remember कि कोई भी addition polymer आपको paper में आ सकता है, provided कि you know how to, link up the monomers to make the large structure of the polymer. तो पहले जो हमारे सिलेबस में है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि if you get some unknown polymer monomers and then you get to draw its structure, तो how would you go about that question? अब अगर आप लोग नोट्स ले रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा या तो जल्दी लिखें या फिर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, आप बाद में दोबारा कॉपी कर लें. आई नॉट बी एबल टू वेट टू मच, क्योंकि मैंने इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, वो भी मुझे एक्सप्लेन करना है. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मार्कोवनिकोव से लिंक्ड है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आज ही खत्म होगा सारा. So addition polymers which you have in the syllabus, if I'll put them in the form of table, that will actually save time and keep all the relevant information in a like a table or in one place for you. तो ये एक table आप draw कर लें इसके लिए. It's like the polymer here, the monomer that makes that polymer, then the structure and the repeat unit, third column can be bigger, and then the physical property of that polymer and one use. So it's the polymer itself, the monomer that makes that polymer, the structure of the polymer, and the repeat unit in it. The physical property of that polymer, and based on that physical property, the use of that polymer. So one is this polyethylene. Addition polymers में typically जो name of polymer है, it tells us कि what monomer makes it. So polyethylene, many ethene come together to make polyethylene. Ethene is the monomer for polyethylene. अब इसका जो monomer है, it is unsaturated, but when many ethene molecules come together, the double bonds break and they turn into single bonds. So what we show in the structure of a polymer, we show 2 repeat units or 4 carbon atoms minimum,
and polythene के केस में there'll be like all hydrogens around carbon. And as far as the repeat unit is concerned, the repeat unit consists of 2 carbon atoms, 2 adjacent carbon atoms. तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ किसी को मार्क कर दूं इस तरह से, that is the repeat unit in fact for that polymer. So the other thing you should know कि जो monomer है, it is trigonal planar 120 degree in shape, while the polymer structure formed is tetrahedral and 109.5, क्योंकि इसमें सारे bonds जो हैं वो single covalent bonds बन गए हैं. It's saturated structure. The monomer is unsaturated. Polythene is a soft structure or polymer, and it has low melting point. And because of its soft and low melting point nature, it is used for making of plastic bags and bottles. तो ये बेसिक एक पॉलीमर है, ये आपने पढ़े में वो लेवल में भी, लेकिन एएस में भी कुछ एमसीक्यूज में आपको मिलेंगे और अननोन पॉलीमर भी एडिशन आ जाते हैं. लेकिन ये जो पॉलीमर सिलेबस में इनके तो मोनोमर के स्ट्रक्चर, यूज और प्रॉपर्टी वगैरह का आपको आइडिया होना चाहिए. फिर we have this PVC, that is polyvinyl chloride. और इसमें क्या होता है कि instead of 4 hydrogens, one of the carbon rather has chlorine attached on it. 3 हाइड्रोजन होंगे और एक क्लोरीन आएगा. अब that chlorine can be on any carbon, up or down, but one of the hydrogen is replaced by the chlorine. And the structure of that polymer will be like again 4 carbon and number of monomer. और alternate carbon पे आपने इसमें क्लोरीन दिखाना है. Like क्योंकि the way I've shown के second number carbon पे क्लोरीन है, तो इसका ये second carbon, उसके बाद next monomer का भी second carbon पे क्लोरीन, and then all the other free bonds will be filled by the hydrogen. That's PVC. इसका repeat unit आप middle वाले 2 carbons को mark कर लें, repeat unit होगा. PVC is relatively hard, or you may say strong, and because of that it is used to make pipes or ducts or utility cables. ये बनाते हैं इसे. फिर we have this Teflon tetrafluoroethene. इसमें क्या है कि सारे के सारे हाइड्रोजन they're replaced by the fluorine. So there are like 4 fluorine attached to the monomer. और इसका जो structure है polymer का, it would all be filled by the fluorine atoms. All fluorine around. The carbon fluorine bond are very strong in this polymer, so it's like this polymer is also strong, but it's known to have very high melting point. And because of this property, it is used for making of non-sticking pans. And beside that, it is used to make firefighters' clothing. Now, Teflon is a very common polymer. In fact, kitchens में जो non-sticking pans होते हैं, their coating inside, the black coating is actually the Teflon plastic. And the melting point of Teflon polymer is around 4000 plus. और जो stove का flame होता है, its temperature doesn't go beyond 500 degrees Celsius, so it's quite safe. In fact, Teflon's melting point is higher than most of the metals. तो इसलिए इसको हम safely, easily use कर सकते हैं for its property or the fact that it has high melting point. ये main polymer एक और मैं नीचे इधर fit कर देता हूँ, polystyrene. Although इसको AS में नहीं वो पूछते, कुछ 1-2 MCQs में नजर आएगा, इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ. Polystyrene में instead of 4 hydrogen, 1 hydrogen is replaced by the benzene ring. अब since benzene is in A2, इस वजह से वो इसको आपसे AS में नहीं पूछते कि ये monomer इसका क्या, और ये ring और अंदर गोलदार है जो मैंने बनाया, what is this thing. But given this structure, you should be able to draw a polymer of any polymer given. उसकी रीजन ये है कि मैंने look at this monomer, I know कि इसमें double bond है, तो it can actually undergo addition reaction
और उसमें जब मुझे इसको ड्रॉ करने के लिए आएगा तो मैं इसके सारे बॉन्ड सिंगल कर दूंगा इस तरह से, और अल्टरनेट कार्बन के ऊपर ये जो चीज़ नीचे मैंने ड्रॉ की हुई है बेंजीन रिंग, इसको मैं शो कर दूंगा। तो इट्स लाइक हाइड्रोजन एंड देन दैट बेंजीन रिंग, फिर 2 हाइड्रोजन एंड again alternate carbon पे 1 benzene ring here. This polystyrene is a very good insulator. It is a good insulator of heat and shock, and because of that it is used in making of disposable cups जो winters में coffee वगैरह हम पीते हैं, और packing material जो electronics नहीं लेते हैं आप, उसमें white packing material होता है, वो polystyrene का होता है सारा, क्योंकि it's a good insulator of heat and shock. तो ये कुछ 4 मेन मोनोमर्स के साथ पॉलीमर्स आपको याद रखने, एक्सेप्ट द लास्ट वन. अब बिकॉज A2 में देयर इज दिस बिग चैप्टर अबाउट पॉलीमर्स, तो यस में आपको पॉलीमर्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज में और कुछ रैंडम शायद 4-5 साल बाद स्ट्रक्चर्ड पेपर में यू गेट 1, 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम इट, बट दे आर इंपॉर्टेंट, दे कैन कम एनी टाइम अगेन. तो ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं सामने, इफ समवन हैज अ क्वेश्चन इन दीस तो आप पूछ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई अननोन मोनोमर आ जाए तो उसके बेस पे हाउ कुड यू ड्रॉ इट्स पॉलीमर एंड ऑल. All right, so I guess I'll use this space now. So the thing is that if you get some unknown monomer and you get to draw its polymer, तो उसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ. दिस बोर्ड इज चेंज्ड और मुझे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. Now let's say कि अगर एक कंपाउंड इट्स लाइक CH3CH, फिर उसके साथ एक ब्रांच है और आगे वी हैव दिस CH डबल बॉन्ड CH COOH. अब एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि सजेस्ट कैन दिस कंपाउंड शो और अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन. तो जब आपको डबल बॉन्ड नजर आ जाए उसमें तो आप कहेंगे जी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा एडिशन पॉलीमर्स. एंड इफ you're asked to draw the structure of the polymer formed from it, तो उसमें आपने करना ये है कि जो डबल बॉन्ड है ना उसको टारगेट करना है एंड ड्रॉ द डबल बॉन्ड इन सच अ वे कि जो कार्बन एंड डबल बॉन्ड वाले उनके एंड्स ओपन रहे, फ्री रहे. अब वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ. मेरे पास देखिए डबल बॉन्ड इस जगह पर है, सो आई विल जस्ट ड्रॉ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन आई विल पुट 2 लाइंस just like this, keeping the ends or the sides free because आपने इनको इस साइड पे ग्रो करना है. उसके बाद आपने लगा देना है एक हाइड्रोजन ऊपर, और ये जो इसके साथ है पूरा पार्ट इसका, इस इफ इट्स टू बिग और अदरवाइज तो आप R भी लिख सकते हो इसको, या एग्जामिनर R लिख सकता है, या फिर आप इसको CH3 ट्वाइस एंड CH भी लिख सकते हो यहाँ पर R की जगह. ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं. एंड द अदर कार्बन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन एंड देन COOH. ये इसका मोनोमर है. अब जब मुझे इसका पॉलीमराइज कराना है इसको, तो n नंबर ऑफ मोनोमर विल कंबाइन. टिपिकली एडिशन पॉलीमर्स की जो कंडीशन है वो हीट एंड हाई प्रेशर है. दीज आर द जनरल कंडीशन फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन. तो जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पॉलीमर का, तो उसमें मैंने बताया कि आपको 2 मोनोमर्स लाइक 4 कार्बन एटम्स के साथ इसको ड्रॉ करना है. सो यू ड्रॉ दीज 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, keep the ends free, put n number here, जितने मोनोमर है उतना इधर आएगा n, और उसके बाद फिर आपने ये alternate groups को अटैच कर देना है इनके साथ. like the hydrogen for example will be all on the top and on the lower side it's R COOH फिर R COOH. and let's say कि अगर आपको ये पॉलीमर मिल जाए क्वेश्चन में और आपसे एग्जामिनर कहते हैं जी इसको देख के इसका मोनोमर ड्रॉ कर दे, तो जो उसका मोनोमर है उसमें आपने रिपीट यूनिट आइडेंटिफाई करके बस उसके बीच में डबल बॉन्ड बना देना है और ग्रुप्स को उसी तरह लेबल कर दें जो उसके साथ नजर आ रहे हैं आपको. तो पॉलीमर से मोनोमर और मोनोमर से पॉलीमर, दे ऑल कैन बी स्केच्ड प्रोवाइडेड कि ये अननोन पॉलीमर है, मतलब आप एडिशन पॉलीमर है. अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आपसे एग्जामिनर ये में तो मैंने इतने क्वेश्चन ऐसे कोई नहीं देखे, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जी इस पॉलीमर का व्हाटएवर पॉलीमर इज दिस व्हाटएवर जो भी मैंने ड्रॉ किया, इसका अगर आपसे पूछ ले कि जो पॉली इथीन है
उसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर दें इसके साथ एक्स वाई जी जो भी पॉलीमर है ये, तो जब आपको कि मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के कंपैरिजन करने के लिए आ जाए अगर पॉलीमर्स में, उसमें आपने ये देखना है कि जो पॉलीमर्स हैं उनमें पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट है या नहीं। तो अब ये जो पॉलीमर मैंने एक्स ड्रॉ किया है यहाँ पे, इट हैज़ क्वाइट हाईली पोलर ग्रुप्स है। इस पॉलीमर की जो चेन्स है उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। तो इस पॉलीमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पॉलीथीन से बहुत हाई होगा, बिकॉज पॉलीथीन सिंपली कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर चेन्स, कार्बन हाइड्रोजन है उसमें और कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ कोई आ सकती है। बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो लोग पास पेपर कर रहे हैं दे विल रियलाइज कि पॉलीमर्स में से कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बने हुए। अब कोई डाउट और क्वेश्चन अगर इस जगह पर है किसी का तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज जो दो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एडिशन पॉलीमर वाला तो आपने नोट्स में लिख लेनी, जितनी भी डिटेल्स मैंने बताई है, अभी नहीं लिखा तो रिकॉर्डिंग देख के लिख लें। और इसके बाद ये जो चीज़ नेक्स्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये भी आपने नोट्स में लिख लेनी है। लेकिन जो कार्बन नैनो पार्टिकल्स हैं उसका मैं हैंड आउट आपसे शेयर कर दूंगा, अभी वो एक्सप्लेन भी करूँगा, वो भी आसान है। इस चीज़ को आप कहीं साइड पे अलग से लिख लें, टेक्निकली ये मार्कोवनिकोव रूल के साथ फिट होता है। ये A2 का कॉन्सेप्ट है, 2-3 साल से इन्होंने AS में शिफ्ट कर दिए, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिक आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन भी होता है, कार्बोकैटाइन जो इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है डिफरेंट मैकेनिज्म्स में। अच्छा, अब कार्बोकैटाइंस की भी टाइप्स हैं, एक होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी कार्बोकैटाइन। ठीक है, इसका क्राइटेरिया वही है जो एल्कोहल्स और हैलोजन एल्केन्स में। तो जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटाइन की, उसका ऑर्डर पहले मैं लिख देता हूँ। टर्शियरी कार्बोकैटाइन is most stable compared to secondary and primary carbocation. Carbocation को मैं CC लिख रहा हूँ, and primary carbocation is least stable. अच्छा, अब टर्शियरी कार्बोकैटाइन टेक्निकली वो होता है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे हाइड्रोजन कोई नहीं होगा, और जब हाइड्रोजन नहीं होता तो टिपिकली फिर R ग्रुप की चेन्स होंगी। So technically has about 3 alkyl groups attached on it. सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट हैज 2 alkyl groups but just 1 hydrogen attached as well. और प्राइमरी कार्बोकैटाइन जो उसमें the carbon with the positive charge has only 1 alkyl group and 2 hydrogens attached. अब इसमें टेक्निकली होता क्या है, आपको मेनली तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना है कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन इज most stable and then primary carbocation is least stable. What happens here is that the carbon which is positively charged, it needs to pull electrons. अब what happens is कि जो alkyl groups हैं इनके साथ R group alkyl group को indicate करता है, all the alkyl groups tend to donate the electron cloud towards the carbon which is positive in the middle. तो इसको 3 मेन साइड से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा होता है, तो दिस कार्बन इलेक्ट्रॉन नीड इज satisfied, meaning that the electron cloud which is large in tertiary carbocation comes from all sides towards the positive carbon which is electron deficient. So it could actually stay in solution for a long period of time. That's why we say it's like stable. Secondary carbocation में the main electron cloud comes from 2 sides, क्योंकि हाइड्रोजन बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं इतना बड़ा देने के लिए, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलेटिवली कम एंड द लोएस्ट और द लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इन द प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो जब इसके प्राइमरी कार्बोकैटाइन के पास कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इज नॉट मेट और सेटिस्फाइड, सो व्हाट हैपेंस इज के लेट्स से कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव ग्रुप है, तो जब ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी नहीं रहती तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करता सॉल्यूशन में। एज आई सेड अर्लियर कि दिस थिंग इज लिंक्ड टू मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल में आपने पढ़ा था कि if the alkene is unsymmetrical and the attacking molecule is like polar, तो फिर the negative group goes to the carbon with less hydrogen. तो अब आप देखें इसमें इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कम है, तो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इट विल एक्चुअली
sort of form a secondary carbocation, ठीक है ना, ये वाला एक हाइड्रोजन वाला बनेगा। तो नेगेटिव ग्रुप फिर उसको मिलेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादातर परसिस्ट करता है सॉल्यूशन में। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आता है फर्स्ट कार्बन पे, लेफ्ट साइड वाले पे, तो इट वुड एक्चुअली बिकम a second primary carbocation, CH3. So this carbocation is primary carbocation. इसके ऊपर नेगेटिव, अब चूंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम रहती है, दैट्स व्हाई ब्रोमीन डज नॉट typically bond with a carbon with more hydrogen. But because this secondary carbocation is more stable, that's why the negative group tends to bond with the carbon having few hydrogens. So if you're asked to explain in detail the reasoning for major product in Markovnikov rule, उसमें फिर आपने बताना है कि carbocation with few hydrogen or the carbon with less hydrogen is more stable in the solution. That's why the major product is formed when negative group attaches to the carbon with less hydrogen. क्वेश्चन आज पेपर में भी था। हैं? Seriously? जी सर। क्या लिखा है? सर मैंने तो मार्कोवनिकोव रूल लिख दिया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको देख लूंगा। वो किस एंगल से था? स्ट्रक्चर्ड पेपर की बात कर रहे हो ना? और सर एडिशन पॉलीमराइजेशन के भी सवाल थे। जी सर। सर वो तो सर ने कहा था कि स्किप करो। सर ये बताएं, पेपर आप बनाते हैं कोई और बनाता है? यार ये तो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे बताओ, आज आपका स्ट्रक्चर्ड पेपर था ना? जी सर। यस सर। सर लग यही रहा था किसी और ने बनाया। नहीं, आज तो वो पॉलीमर्स के क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ ना सर। आज भी सर लास्ट था ना सर। एमसीक्यूज में इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल भी था। तो यार मैं आज की बात करूं, आप पिछले रोने रोई जा रहे आज हैं। भी था सर, आज भी था। आज भी पॉलीमर्स का क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट भी था। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो आपके मजे हो गए। इसका मतलब मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सर कौन सा कोई 10 मार्क्स का सवाल था? 2 मार्क का। दो ही तो नंबर थे सर। आप कहोगे यही ठीक हुआ था ना? कोई मसला नहीं बेटा, ये बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे मसले होते रहते हैं, कोई मसला नहीं। आपको पता है आई एम नॉट अ टीचर विच विल कट योर मार्क्स विदाउट एनी रीजन। तो मैं भी देख लूंगा, अगर ये चीज जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ उधर आई हुई तो मैं इसका मार्क्स क्यों काटूंगा आपके। तो बस ये मार्कोवनिकोव रूल से लिंक्ड है, लेकिन जब आपको स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है तो आपने कार्बोकैटायन के सेंस में एक्सप्लेन करना है, सेंस। ठीक है जनाब, आप कार्बन नैनो पार्टिकल्स पे आ जाएं। उसके लिए इसको मुझे बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। Now I hope you could see this handout. I'll post it in the group. अब ये ना कहना कि इसके नैनो पार्टिकल के भी क्वेश्चन थे। मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि सर इसके नहीं आए थे। ठीक है, पेपर में सर आपने हमें बताया नहीं कि सेक्शन बी खत्म हो गया। जानबूझ के नहीं बताया ना। अब अगर मैं बता देता तो सेक्शन बी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आप लोग। इसे फाइनल्स में सेक्शन बी नहीं होगा। फाइनल्स में सेक्शन बी खत्म हो गया बेटा इस साल से। लेकिन बात ये, आप लोग मुझे अपने ऑनेस्ट ओपिनियन से बताओ, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही सारी, कि सेक्शन बी इंटरेस्टिंग है ना? उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते? ना सर, ज्यादा ट्रिकी वही होता है। हाँ तो बेटा इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात पहले नहीं बताई, क्योंकि फिर वर्कशीट्स में अच्छे खासे सेक्शन बी थे, पास पेपर्स में भी है। अगर आप उसको टच नहीं करते बिल्कुल, तो उतनी मेरा नहीं ख्याल कि ये पेपर को आसान कर दिया उन्होंने। टाइम भी बढ़ा दिया 15 मिनट्स और सेक्शन बी भी खत्म कर दिया। बट द वाइज थिंग इज टू प्रैक्टिस द हार्ड थिंग एंड बी रेडी फॉर ट्रिकी वंस। अब जो अभी आप पेपर प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपने 1 आवर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? अभी अगर कोई 1 आवर की जगह 1 आवर 15 मिनट में उसको प्रैक्टिस करके खुश हो रहा है कि उसके नंबर 30+ आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो जितने भी पेपर्स हैं, पास पेपर्स, दे वर एक्चुअली डिजाइंड फॉर 1 आवर। और उसमें भी सेक्शन बी जरूर ट्राई करें आप, ठीक है? ये अब चूंकि मॉक मैंने कैमरेट स्टाइल पे बनाना था, इसलिए मैंने सेक्शन बी हटा दिया। तो अभी भी आप प्रैक्टिस जरूर करें और एमसीक्यूज की तैयारी जरूर करें। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि एमसीक्यूज में 3 हफ्ते का गैप है तो उस वक्त करेंगे, ये गलत अप्रोच है। आपकी तैयारी एमसीक्यूज के पेपर से ही होगी। खैर,
कार्बन का जो थर्ड एलोट्रॉप है अदर देन डायमंड एंड ग्राफाइट, इट इज कॉल्ड these are called carbon nanoparticles. They were discovered in 1980s by a scientist Buckminster, और उसी की बेसिस पे फिर इनको उन्होंने, और बाद में और टाइप्स इसकी डिस्कवर होती रही। हमारे सिलेबस में कार्बन नैनो पार्टिकल्स की दो ब्रॉड टाइप्स हैं, एक फ्लोरीन्स हैं और दूसरे ग्राफीन है जो इसके साथ या नीचे अटैच्ड हैं। One thing you should know about carbon nanoparticles is that these are extremely small in size. Like these are particles which are extremely small, microscopic level पे होते हैं। तो इनमें जो दो टाइप्स हैं कार्बन नैनो पार्टिकल्स के हमारे सिलेबस में, उनमें वन इज दिस फ्लोरीन, और फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज है जनरल वो मैंने इधर ऊपर लिखी हुई है, आपने इनको पढ़ना है और ये जो पॉइंट्स मेन मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इनको याद भी रखना है। लाइक वन शुड नो that fluorines are hollow, spherical or tubular structure. जो spherical हैं वो ये वाले हैं, they're simple molecules जिनको हम Buckminster fullerene कहते हैं, they're like football sphere, football जैसे उसकी तरह की shape के होते हैं, that's why, and they are made up of less number of carbon, simple molecules and like 60 carbon atoms, 120, 70 इस तरह से different carbon sizes के smaller or larger football sphere structures होते हैं। They consist of hexagons shapes. They're all made up of carbon by the way, क्योंकि ये carbon के allotropes हैं, and they also consist of this pentagonal shape, और अंदर से hollow होते हैं। फिर इनकी जो properties हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है कि sublime कर जाते हैं low temperature पे, and they're not giant structures, और relatively soft है और poor conductor electricity वगैरह का, क्योंकि इनमें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, और कार्बन डाइसल्फाइड इज अ सॉल्वेंट जिसमें ये डिसॉल्व भी हो जाते हैं। सो दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, नॉट मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बाकी डायमंड ग्राफाइट तो आपको पता है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जो कार्बन के पहले दो एलोट्रॉप्स आप पढ़ते आ रहे हैं वो लेवल से। देन दिस कार्बन लाइक नैनो ट्यूब्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपको डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इफ यू सी दिस डायग्राम तो यू शुड नो कि ये बकमिस्टर फुलरीन है, और जो नैनो ट्यूब्स हैं these are tubular structures, जैसे टेस्ट ट्यूब अंदर से होती है हॉलो, बिल्कुल वैसे ही। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप ग्रेफाइट की एक शीट लेके उसको रोल कर देंगे पेपर की तरह, तो देन यू गेट these nano tubes. They consist of hexagonal units, cylindrical in shape, and they're very thin in diameter. Like जो hair है, बाल होता है, उसके diameter के equal इनका diameter होता है, and they're actually extremely good in properties in terms of conductivity. तो ये जितनी भी आजकल केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर के बाद जो लेटेस्ट चीज आ रही है वो ये सारी नैनो ट्यूब्स हैं। एक्सट्रीमली गुड कंडक्टर और स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो मेटल की केबल्स हैं या ऑप्टिकल वो तो बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनके अगेंस्ट जो नैनो ट्यूब्स हैं, these cables are extremely strong and they have high melting points. स्ट्रॉन्ग को मतलब जनरल आपको डिफरेंस और पॉइंट्स याद रखने हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज है लिखी हुई हैं। और इनके यूसेस हैं बहुत ज़्यादा, लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में इनको यूज़ किया जा रहा है, और बैटरीज में, और डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स की क्लोथिंग वगैरह बनाने के लिए ये शीट्स और नैनो ट्यूब्स के मटेरियल की फाइबर्स को यूज़ की जाती हैं। और इसके बाद ये जो ग्राफीन है इसको भी देख लें। फिर मैं जब ये हैंड आउट में शेयर करूंगा इसको अपने प्रिंट करें या हाथ से लिखें, ड्रॉ करें, हाथ से लिखेंगे तो बेस्ट है। आप पढ़ेंगे साथ साथ थोड़ा आपको और क्लियर होगा तो कुछ याद भी रहेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो नैनो ट्यूब्स का ये भी A2 से हमारे सिलेबस में आया हुआ है, और A2 में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। 2016 में AS के सिलेबस में आया, लेकिन AS में इसको ज़्यादा एग्जामिनर नहीं पूछ रहा क्वेश्चंस में, कुछ MCQs में इसमें आपको चीज़ें नजर आएंगे, वैसे नहीं है। So graphene is also third allotrope of carbon, which are actually broad sheet like. जैसे ग्रेफाइट की शीट होती है, आपको पता है ग्रेफाइट टू मल्टीपल लेयर्स में होता है। अगर आप ग्रेफाइट की एक शीट को निकाल लें, लेयर को निकाल लें, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्राफीन। और अगर उसके ऊपर आप मल्टीपल शीट्स रख के उनको अटैच कर लें समहाउ, दैट मेक्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, कैन बी चेंज इनटू डिफरेंट शेप्स, और उसी बेसिस पे साइंटिस्ट इनसे बना रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। ये जो मैंने इधर यूजेस लिखे हुए हैं कि इनको दे आर मच बेटर कंडक्टर देन ग्रेफाइट, क्योंकि इनके अंदर फ्री स्पेसेस नहीं होती, शीट्स की तरह से नहीं होते, बट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से।
तो इनमें कंडक्टिविटी अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है। टच स्क्रीन्स और सोलर सेल्स, ये बैटरीज वगैरह इनके यूसेस में आते हैं। उसके अलावा जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं, मार्क 2, 3 और ये जितने भी रडार में डिटेक्ट नहीं होते, ये सब ग्राफीन शीट से बनाए जाते हैं। A fighter jet made from graphene sheet sort of perform much better than a typical aircraft, क्योंकि ग्राफीन से जो बनाया जाएगा, एक तो वो रडार में डिटेक्ट नहीं होता, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है इसी तरह इस पे बेस्ड। फिर उसका वेट बहुत कम होगा, कार्बन मास इज 12, और आप एल्युमिनियम से भी कोई फाइटर जेट अगर बनाते हैं तो उसका मास 27 है, सो इट्स अबाउट हाफ द मास ऑफ एल्युमिनियम। और फिर लाइट वेट होने की वजह से मैनूवरिंग अच्छी है, फ्यूल कंजम्पशन कम है। इस तरह की ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो ये कार्बन नैनो पार्टिकल्स में हैं, और बहुत सी साइंसेस में इसको यूज़ किया जा रहा है। मतलब जो स्पोर्ट्स रैकेट्स हैं, स्पोर्ट्स बाइसिकल्स हैं, लाइट वेट होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो ये ग्राफीन शीट्स के मटेरियल से बनाते हैं। तो अब ये सिलेबस में तो है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एएस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अभी तक जो क्वेश्चन मुझे नजर आए एमसीक्यूज में आ रहे हैं, उसमें ये डायग्राम बनी होती हैं, इसको देख के एग्जामिनर आपसे कहता है जी बताएं ग्राफीन है या कार्बन की कौन से एलोट्रॉप की टाइप है, और उसकी यूसेज और प्रॉपर्टीज वगैरह भी कुछ हैं क्वेश्चंस। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये जो हैंड आउट में मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये ऑलमोस्ट आपको कंपैरिजन में याद रखनी चाहिए, डिफरेंट जो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, थर्ड एलोट्रॉप के सेंस में। तो अब इनमें अगर कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग पूछ लें। वैसे जनरल नॉलेज का टॉपिक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले पता होता है इन चीज़ों का। तो चूँकि ये आपके सिलेबस में भी है, तो इसको आपको सही से प्रिपेयर करना है। ये हैंड आउट मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी क्लास के फ़ौरन बाद। और कोई चीज़, अब आपके एग्जाम तो खत्म हो गए, आपका केमिस्ट्री का पेपर ही पोस्टपोन हुआ था।